Ice has less density than water. Less density means ice is lighter as compared to water. So how to explain this? Ice is a solid. तो solid में तो हम कहते हैं कि molecules पास पास होते हैं. तो ice की तो density ज़्यादा होनी चाहिए. But on the other hand, what we are saying is that ice has less density than water. So how to explain this fact? In the case of ice, there is hydrogen bonding. Now, in the case of ice, there is a particular requirement of the hydrogen bonding. In the case of ice, I am drawing the structure of ice here. अभी चौक ऐसे करती रहो. बेटा कहीं से देखना डस्टर ला दो. ये लैब में पड़ा होगा. So in the case of ice, it has less density than water. So in the structure of ice, what I say that if this is a water molecule, now this oxygen is attached to hydrogen of another water molecule. What is not properly visible? हाँ आगे क्योंकि मैंने अपना पर्स रख दिया, हटा दिया. ठीक है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है. Similarly, this hydrogen is combined to oxygen of another water molecule. ठीक है. अब ये जो ऑक्सीजन है, it is combined with hydrogen of another water molecule. So what we say is that in the case of ice, how many water molecules are joined together? 4 water molecules. ठीक है. अब आप देख रहे हो कि इसके बीच में there is lot of vacant space. इसकी ऐसी रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. आप देखिए सारी स्पेस क्या है, वेकेंट है. So why ice has less density than water? Due to extensive hydrogen bonding, there is lot of vacant space. There is lot of vacant space in ice due to steric requirements. Steric का मतलब होता है size. Due to steric requirements. Is it okay? So in the case of ice, there is lot of vacant space because of the size requirement. So ice lighter. What you have written is not clearly visible. Blur आ रहा है थोड़ा. Can you please the camera balance? अच्छा मैं एक बार दोबारा से करती हूँ. कैमरा ऑन करती हूँ, बंद करती हूँ. अब देखो. मैम कैमरे को थोड़ा क्लीन कर दो मैम. शायद उसके से हो रहा है. साफ ही दिख रहा है. नहीं तुम अपना कैमरा दोबारा देखो बेटा एक बार. बाकी सबको साफ दिख रहा है. हाँ या ना तो बोल दो. अच्छा मैंने बेटा एक बार क्लीन कर देती हूँ. दैट्स नॉट अ इशू. Okay. ठीक है. So there is lot of vacant space in ice due to steric requirement. So this is why the ice has less density than water. Now what happens on heating ice? When I am heating ice, on heating ice, ice किसमें convert हो जाएगा? Water में ना. On heating ice, some of hydrogen bonds are broken.
On heating ice, some of the hydrogen bonds are broken and water molecules move in vacant spaces. अब हमें मालूम है कि जो वाटर लिक्विड है, लिक्विड के डेंसिटी ज्यादा है, आइस तो हल्की है, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो व्हाट हैपेंस, कुछ आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया और ये वाटर मॉलिक्यूल मूव करके कहाँ जाएगा, बीच में। तो मॉलिक्यूल्स पास पास हो गए ना। पहले क्योंकि इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी कि वो दूर दूर थे, लेकिन जब हमने उसको हीट किया तो एक वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये वाटर मॉलिक्यूल बीच में आ गया। तो यानी ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके कहाँ गया, बीच में आ गया। तो अब मेरे मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। So that's the reason what we say is that ice has lesser density or water is more denser than ice. हाँ, पहले एयर होती है लेकिन अब उस की जगह क्या आ गए, वाटर मॉलिक्यूल्स। बस आपको यहीं तक एम्फोटेरिक नेचर भी करना था। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। The first chemical property in the case of the chemical property of water, the first chemical property is amphoteric nature. What is the meaning of amphoteric? Can react with both acid and base. Amphoteric are those which can react with both acids and bases. Okay. Now it means if I am taking this water, I am reacting it with HCl. What we get? ये acid है, तो ये H plus lose करेगा, and water will gain H plus. So what we are getting is HCl plus and Cl minus. So this reaction shows that water is amphoteric. Now similarly, instead of water, if I am taking is H2S, तो H2S ने H plus lose कर दिया और water will gain H plus. So what we are going to get is HCl plus plus HS minus. Okay, so it means water is acting as a base. Water as base. Acid से lose किया और water ने gain किया. Now similarly, if I am taking this water and I am reacting it with ammonia. Now ammonia, as I told you, it is a Lewis base. कल बताया था, ठीक है? So ammonia is a Lewis base. तो क्या होगा? Water H plus lose करेगा. जो water है, water क्या कर रहा है? As a acid. तो water loses H plus. तो अगर water ने H plus lose कर दिया तो क्या बचेगा? OH minus. ठीक है? और ammonia ने H plus gain कर लिया. So what we are getting is NH4 plus and OH minus. So in this case, water is acting as a acid. In general also, दिख रहा है आपको? Water undergoes self-ionization. Self-ionization means if we have got two water molecules, one of them will lose water and and other will gain H plus. So it shows it is a self-ionization. Self-ionization means अगर दो water molecules हैं तो they occur in the form of H3O plus and OH minus. Next topic. Redox reactions involving water. Now, in the case of redox reactions involving water, it means when water is reacting, we know that metal reacts with water to liberate hydrogen gas. Okay. The second chemical property is redox reactions involving water. So if I am taking this sodium plus water, what we get? NaOH plus H2.
नाउ इन दिस के सोडियम का क्या हुआ, 0 से +1, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन की यहाँ +1 थी, यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी है, 0। तो इट मींस सोडियम की ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन की क्या हो गई, रिडक्शन। So all these, I am not balancing the equation. बैलेंस करना तो यहाँ पर या तो 2 2 कर दो, सब जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। So it means that one element is getting oxidized and other element is getting reduced. So this is the meaning of redox reactions involving water. Next example is, if I am taking is fluorine plus water. Now fluorine का यहाँ पर है 0, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2. These are the oxidation state. So when fluorine is more reactive, so a more reactive element displaces a less reactive. So what we are getting is 2HF plus O2. यहाँ पर था फ्लोरीन का 0, यहाँ है फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का यहाँ है 0, यहाँ था -2. तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन और फ्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन. Is it okay? Another example is photosynthesis. Photosynthesis means carbon dioxide reacts with water to give glucose. So all these are redox reactions involving water. Next is hydrolysis. Third type of, ये केवल एनसीईआरटी से करना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. Hydrolysis. What is the meaning of hydrolysis? Means addition of water. कोई सब्सटेंस वाटर अपने अंदर ऐड कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, yes, any doubt? If I am taking a sulfur dioxide and I am reacting with water, what we get is H2SO3. So this is an example of hydrolysis. Sulfur dioxide reacts with water to form sulfurous acid. Another example is, if I am taking is P4O10 and I am reacting it with water, what I am getting is H3PO4. But someone wants to say anything? So what we are getting is, of hydrolysis is? Hydrolysis means tendency to hydrolysis means addition of water, which may result in a chemical reaction. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वाटर पोलर होता है ना, तो H+ और OH-, तो चार्ज सेपरेशन हो गई. तो कितनी चार्ज सेपरेशन हुई है, दैट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है. तो हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर which may result in a chemical reaction. एक एग्जांपल और दे रखा है, if I am taking is SiCl4 plus water, what we are getting is silicon dioxide plus HCl. All these are hydrolysis. In the first step they add water. फर्स्ट स्टेप में वाटर ऐड होता है, उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकता है. जैसे फर्स्ट दो में तो सिंपली वाटर ऐड हुआ है, लेकिन इसके अंदर वाटर ऐड हुआ है, उसके बाद एक कोई रिएक्शन हुआ है, एंड देन व्हाट वी आर गेटिंग इज SiO2. ठीक है. नेक्स्ट आर हाइड्रेट फॉर्मेशन. हाइड्रेट फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के हिसाब से. नेक्स्ट इज हाइड्रेट फॉर्मेशन. Now in the case of hydrolysis there will be one product. No, it depends. मैंने क्या कहा, जैसे ये केस है, इसमें पहले वाटर ऐड होता है, उसके बाद क्लोरीन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ HCl. इसका मैकेनिज्म है आपका P ब्लॉक में है, पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म इस हाइड्रोलिसिस का. तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय सम रिएक्शन. रिएक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है. शुड आई कंटिन्यू फर्दर? Next is hydrate formation. Hydrate means again addition of water molecules. अब ये hydrates आपके कई तरह के होते हैं.
बस इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स नहीं है आपकी। इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टाइसिस पर बताई थी वाटर इंटरस्टिशियल पोजीशंस। इंटरस्टिशियल मींस वेकेंट पोजीशन, कल ये पॉइंट बताया था आपको कहीं पर इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स में कि इंटरस्टिशियल मींस वेकेंट पोजीशन। तो जैसे आपको ये किसी भी चीज का क्रिस्टल लैटिस है, इसके बीच की जो खाली स्पेस है वहां क्या चला गया, वाटर। तो इन सर्टेन कंपाउंड्स, water is present as, in certain compounds water is present as, first is interstitial water. Example is barium chloride containing 2 water molecules. Now this is interstitial means water react nahi hua, water is simply present in the vacant spaces. तो एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स फोकस करने होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। Now second type of water is coordinated water. Do you know what is the meaning of coordinate covalent bond? Now coordinated water means water forms coordinate covalent bond. What is the meaning of coordinate covalent bond? ठीक है, तो वाटर फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद मेटल आयंस, और पर्टिकुलरली आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो बताया था आपको ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, दे फॉर्म दिस हैव द कोऑर्डिनेटेड वाटर। एग्जांपल इज crystal formation में भी when we write dot H2O तब भी it is interstellar form। समझा रही हूँ, एक मिनट बस। ये देखो आपका, अब इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड वाटर की एक वो है पर्टिकुलर कि उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इट मींस जैसे क्रोमियम है Cr3+, वाटर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंस होता है, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन शेयर्स इट्स लोन पेयर इन द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम। तो इस तरह से आपके क्रोमियम के पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 6। तो कोऑर्डिनेटेड वाटर को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी चीज हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेटेड। और भी एग्जांपल्स हैं इसके। इफ आई एम राइटिंग इज दिस कोबाल्ट, कोबाल्ट भी कई बार ये निकल भी बनाते हैं, या कोबाल्ट, ठीक है, इसके अंदर भी वाटर क्या है, कोऑर्डिनेटेड। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट। 12th में तो आपको पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। 11th में बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो उतना ही पॉइंट याद करो। थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। इट मींस वाटर इज फॉर्मिंग अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ फॉर एग्जांपल, इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट containing 5 water molecules. Now this is very important example. Copper sulfate containing 5 water molecules. Now in this particular example what is happening? Copper के साथ इसको अगर मैं स्प्लिट एक्चुअल लिखूंगी ना, तो आई कैन राइट इट इन दिस वे। नाउ व्हाट डज इट मींस? इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कोऑर्डिनेटेड, तो इसके अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स तो आपके कोऑर्डिनेटेड है, दे आर फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपका क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आपके कई बार मिक्स भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो सकता है। इंटरस्टिशियल का मतलब है सिंपली इन द वेकेंट स्पेस। क्या चीज? डॉट मींस उसे बॉन्ड नहीं बनाया, वो उसके साथ अटैच्ड है आइदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब वो रिएक्ट नहीं किया। जैसे इसमें तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब कि इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन जब मैंने डॉट डाल दिया तो इट मींस ये हीट करने पे वाटर निकल सकता है। आपने जिप्सम किया था ना, 11th में किया, 10th में किया था ना,
कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स या तो इसे हाइड्रोजन बॉन्डेड है या इंटरस्टिशियल वाटर है, दे आर नॉट फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल्स है, बस 3 एग्जांपल्स याद कर लो, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर ओवर। ठीक है, क्वेश्चंस प्लीज ट्राई। अगली बार आओगे और नेक्स्ट वीक मंडे को, जब भी मंडे या ट्यूसडे, तो प्लीज ब्रिंग योर कॉपीज। जो टॉपिक्स कट गए उनके क्वेश्चंस नहीं करने। नाउ आफ्टर दिस we are coming to the very most important topic of chemistry, that is organic chemistry. ठीक है, तो स्टार्टिंग का पोर्शन रीकैप है, कुछ पोर्शन मैंने आपको पहले ही करा दिया था, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। So this is the last chapter that we are starting of the term 1. उसके बाद हम आगे कंटिन्यू तो रखेंगे ही, जब तक एग्जाम, एक वीक पहले रिवीजन देंगे बस आपको। So I am starting with this chapter, organic chemistry, some basic principles and techniques. और इसके लिए अगर क्लास में आ जाओगे तो मैं बहुत अच्छे से, मतलब क्लास में तो मैं बहुत अच्छे से खींच के कराती थी ऑर्गेनिक हर बार। अदरवाइज भी अगर आप ट्राई करोगे देन इट्स गुड। ओके, एक मिनट में उठा रही हूँ फोन। अटेंडेंस अभी बीच में लूंगी जब वो शीट आएगी। ओके, नाउ ऑफलाइन है 32। Now in the case of organic chemistry, now we are starting with the chapter number, I think is 12, basic principles and techniques. Now what is the meaning of organic compounds? Introduction ऐसे समझा रही हूँ। Organic compounds, initially it was thought that organic compounds are those which is present in the living system. Living system means plants, animals, जो भी living tissues है उसमें present है. Initially for a long period of time, it was believed that we cannot prepare organic compounds in the lab. ये human में अपने आप आते से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ग्लूकोज वगैरह हो गए, all these are the organic compounds. ठीक है, so initially it was thought that organic compounds cannot be prepared in the lab. The first organic compound that was prepared in the lab, one marker में है ना, the first organic compound that was prepared in the lab is urea. It is NH2C double bond ONH2. So one marker question के हिसाब से it is the first organic compound. स्टार्टिंग में बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही है, एक्चुअली में सिंथेसाइज्ड इन लैब। ठीक है, अच्छा ये किससे बना था? अमोनियम साइनाइड से। इक्वेशन गिवन है बुक में। इफ वी आर टेकिंग दिस NH4CnO on heating, it converts into urea. So ammonium cyanide on heating converts into urea. Now after this, a large number of organic compounds like acetic acid, alcohol, they can be prepared in the lab. All of you know about the hybridization of carbon. Single bond means sp3, double means sp2, triple means sp. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करा रही हूँ, एग्जाम्पल 12.1। ये सारा मैंने आपको पहले करा दिया था। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अच्छा इसमें क्या चीज बताई थी मैंने आपको कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा,
डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड मींस एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, अब मैं इनके आंसर पूछूंगी सबसे। अच्छा, इसमें बॉन्ड अपने आप भी दिखाने होते हैं आपको कई बार। CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा है। अब आपको इसको करने के लिए पॉइंट याद करना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड करते हैं ना, तो आप बेटर है इसको इस तरह से लिख लो पहले, इसके अंदर C बॉन्ड H, अब आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो गई ना दो एटम्स के बीच में, फिर आ गया ट्रिपल बॉन्ड C, साथ में आ गया CH। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होगा, बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड। अच्छा, H को मैं कभी भी बीच में नहीं लिखती, H को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इट मीन CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया CH, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड C H CH3, ऐसे लिख लो जैसे आपको इजी लग रहा है वैसे लिखो। अब आपको करने सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। हाँ जी, कौन मेरे को बताएगा? अमन, कितने सिग्मा बॉन्ड है अमन? हम रिपीट कर दो एक बार। How many sigma bonds? How many sigma bonds? हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन है उसको भी सुना नहीं है, आंसर करना है। मैम 10। 10, ओके लेट्स सी। अगर देखो मैं इससे भी देख सकते थे डायरेक्ट, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने सिग्मा बॉन्ड्स, तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स तो हो गए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहाँ पर ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, तो 1 सिग्मा। अब इन दोनों के कार्बन के बीच में भी सिग्मा, तो ये बॉन्ड भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा होगा, यहाँ पर भी सिग्मा होगा, यहाँ पर भी सिग्मा होगा, तो 1 2 3 4, तो 6 प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए कार्बन कार्बन के बीच में, जो भी कार्बन है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 4, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स आर 10। और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, ये 1 3 और ये हो गया 3, तो 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट पाई बॉन्ड दोबारा बता रही हूँ, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है फर्स्ट बॉन्ड होता है सिग्मा, और फर्स्ट बॉन्ड होता है सिग्मा में यहाँ बना दे ट्रिपल बॉन्ड, तो फर्स्ट बॉन्ड हो गया सिग्मा और बाकी दोनों बॉन्ड्स क्या हो गए पाई। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा सेकंड पाई, तो टोटल पाई कितने हो गए 1 2 और 1 3। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में, चलो मैं क्वेश्चन दूसरा आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताई थी sp3 sp2 इज फॉर्म, तो माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है CH2F CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH, माय क्वेश्चन इज, या चलो राइट फर्स्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सेकंड number of pi bond, also mention hybridization. Agnish, are you present? Agnish? Yes ma'am। Okay. Agnish, now you have to tell me, in this question सबसे पहले आपको बता दिया total number of sigma bonds, बताओ कितने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, टोटल हाइड्रोजन काउंट करो। आकांक्ष मैम सिग्मा विल बी 11। सिग्मा आयुष का 5 बॉन्ड बताओ, सिग्मा आ गए 11, लेट्स चेक
कैसे आए? 2 हाइड्रोजन Yes. 3 4 5 6 तो 6 तो फिर आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अरे कार्बन कार्बन क्लोरीन के साथ कितना बनेगा? ठीक है, एक बॉन्ड हो गया कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेके 1 2 3 हो गए कार्बन कार्बन, एक बॉन्ड है कार्बन एंड क्लोरीन। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड जो है उसका हो गया सिग्मा। आयुष आयन आप इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ। फर्स्ट जो कि आयन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी 1 5 हाँ जी आयन आप बताओ। इस कार्बन के साथ सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो sp3 होते हैं। डबल बॉन्ड आ गया तो sp2। हाँ जी बोलो फर्स्ट सिग्मा क्यों एक ही तो ये सिग्मा एक ही तो है ना डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में। इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरी है ना। ओके अरे फर्स्ट की sp3 सारे सिंपल देखो तो सारे सिंगल बॉन्ड है ना, कोई डबल तो नहीं है ना। sp3 चलो आरो अब बताओ डबल बॉन्ड आ गया तो किसी भी कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड आता है तो हाइब्रिडाइजेशन में देखिए sp2। ठीक है sp2 नेक्स्ट आप बताओ बेटा इसकी इसका डबल बॉन्ड है sp3 किससे डबल बॉन्ड पहले कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड है। अगर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। इसलिए बताओ कोई डबल बॉन्ड है नहीं सारे सिंगल है ना sp3। याद है समझ। नेक्स्ट एग्जांपल पहले बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा इस केस में क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स हैं हमने हाइड्रोजन में भी लिखे कहीं मैंने हाइड्रोजन दिखाए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है तो अब इस कार्बन के साथ इसका क्या मतलब है कि ये आपको कार्बन है तो ये कार्बन है ये कार्बन है ये कार्बन है ये कार्बन है ये कार्बन और हर कार्बन के साथ तो इस कार्बन का द्वार के दो बॉन्ड बने हैं तो दो क्या होंगे हाइड्रोजन। so we have to attach two hydrogens एक मिनट करके दिखा रही हूं मैं टेंडेंस लेगी। so it means that there will be two hydrogen attached to this carbon। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन इस कार्बन का 1 2 3 4 चारों बॉन्ड कंप्लीट है नौ हाइड्रोजन इसके साथ भी चारों बॉन्ड कंप्लीट है 1 2 3 इसके साथ एक हाइड्रोजन। ठीक है तो हर कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना उसके बाद ये वाला एग्जांपल ट्राई करना। तो एग्जांपल दिए मीनवाइल आयन ये ड्रॉ कर लो क्योंकि मुझे वो चाहिए होगा फोन। मैम इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताने दोनों में। हां और हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना। एग्जांपल पहले नोट कर लो क्योंकि उसके बाद 2 मिनट कैमरा गैप है देखो यहां पे कौन-कौन प्रेजेंट है आरव ग्रेवाल और आगे है नाम बोलती हूं मान तो हम ओके बेटा मैं आपको दिखा रही हूं 2 मिनट आपको नहीं दिखेगा ब्लैक क्वेश्चन बस लिख लो तब तक करो। And I will be asking answer from Siddhant, Shashwat,
Arumita, Devansh. Okay, attendance करो फटाफट. Akansha, Present, ma'am. Arav Sharma, Avnish, Present, ma'am. Akshita, Present, ma'am. Aman, Anshika, Present, ma'am. One present. Arumita, Ayush, Present, ma'am. Bhavya Bhardwaj, Daman, Present, ma'am. Present, ma'am. Bhavya Krishna, Devansh, Ishita, Present, ma'am. Present, ma'am. Gautam Thakkar, Ryan, Present, ma'am. Present, ma'am. तुम डिलीटेड भी देख लो, हार्ड एंड सॉफ्ट फोटो से डिलीटेड है. स्टार्टिंग मैम गौतम कुमार प्रेजेंट. पहले क्यों नहीं था? मैम एग्जिट हो गया था गलती से. करना Present, ma'am. I'm connect present. Present, ma'am. Can't help. Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. नींद पूरी नहीं हुई प्लस वो उठ भी गई थी जल्दी. शिवांश नहीं है. Present, ma'am. Shivansh. Ma'am, Shreya present. Ma'am, you are not clearly audible. Yes ma'am, you are not audible. Ma'am, एक बार आप रहते. मैम एक बार एब्सेंटीज का नाम बता दो. अपना नाम बोल रहे हो. Ma'am, I am same and present too. अभी कृष्णा नहीं है, ऋषभ नहीं है, दिलचस्प फाइव नहीं है. मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मैम. मैम अंशिका उन ने मैम अपना ऑन कर रखा है माइक. अंशिका से मैंने प्रेजेंट लगा दिया है. Present, Vanshika. Anshika is not present. Am I audible to all of you? Yes. Am I audible? मैम मेरी भी अटेंडेंस नहीं हुई. सिद्धार्थ जैन. मैम मेरी भी नहीं हुई मैम. संकेत. Yes ma'am. साहिल बेस्ट. मैम आपने मेरा भी नहीं लिया नाम मैम. मानव. मानो मैंने सबकी प्रेजेंट लगा दी. 3 बच्चे को प्रेजेंट करवाए. जिनके नाम मेरे पास है मैंने वो सभी की लगा दी. ठीक है? ओके. अब आगे देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं. इसमें सबसे पहले कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड देखते हैं कितने हैं. 1 2 ये सिग्मा 1 2 3 4 5 6 ये भी सिग्मा है 7. ठीक है. आप हाइड्रोजन के साथ देखते हैं 1 2 3 4 5 7 प्लस 5 कितना होगा सिग्मा 12. 5 और 6 ये 2. 1. अच्छा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ. मैंने 2-3 बच्चों का नाम लिया था. मैं उनसे पूछना बोलते हैं व्हाट इज मैम पाई 2 कैसे हैं? डबल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है ना. ट्रिपल बॉन्ड है मैम. ओके. ठीक है. ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई और 1 सिग्मा. अच्छा बताओ आगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम. यानी sp3 इसकी क्या होगी.
sp3 sp3 इसकी sp3 yes इसकी भी sp3 yes अगर डबल बॉन्ड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो दो जगह करके डाउट ले इस कार्बन में कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड तो ये वही है हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर केस में इस कार्बन की हाइड्रोजन इसमें दो सिग्मा बॉन्ड एक ऐसे और एक इस कार्बन कार्बन एक हाइड्रोजन इस कार्बन अभी चेक करना चाहिए ये दो हाइड्रोजन में से घूम गई क्या मैंने हाइड्रोजन नहीं दिया है ना हाँ जी ऑनलाइन ऑर्डर तो किसी ने बताया यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा ठीक है चलो अब इसका बताओ एक बेंजीन रिंग है हर कार्बन सुनाता है तो पहले तो जब भी रिंग होता है ना एक बार बॉन्ड चेक कर लिया करो इस कार्बन की देखो 1 2 3 तो साथ में क्या होगा हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा तभी चार बॉन्ड होंगे इस कार्बन के चारों बॉन्ड तो पूरे हैं 1 2 3 4 ठीक है अब ये CH3 के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हम देख लें तो अब कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे पहले पाई निकाल लो जो भी सारे डबल बॉन्ड है पाई कितने हो गए पाई ठीक सिग्मा कितने हो गए पहले हाइड्रोजन देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 तो एक सिग्मा बॉन्ड से हो गए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यस और नो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 हो गए कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने हैं एक ये भी सिग्मा है 1 2 3 4 5 6 7 तो 8 + 7 which is equal to 15 ये देखो ये भी सिग्मा है 1 2 3 4 5 6 7 प्लस हाइड्रोजन के साथ 8 7 + 8 which is equal to 15 ठीक है ये टॉपिक हो गया है पहले सारा कराया और इट इज जस्ट फॉर रीकैप ओके हम इसमें सारे कार्बन्स की sp2 होगी ना ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड लेकिन ये वाला क्या होगा sp3 बाकी सारे आपके sp2 हैं बाकी सारे आपके sp2 हैं सबके साथ डबल बॉन्ड है ना ठीक है ओके नेक्स्ट व्हाट यू आर टेकिंग इज द 3-dimensional structure of organic molecule ये सब बताया था प्रेजेंट और फिशर एक बार नहीं ओके अब अगर सपोज मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाते CH4 का तो आप एक तो इस तरह से दिखा देते हो या तो हम ऐसे दिखा देते हैं कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स हैं मतलब बॉन्ड पे सिंगल लाइन से दिखा रहे या मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूं कि कार्बन एटम मेरा टेट्राहेड्रल है तो टू बी मोर एक्यूरेट आई कैन शो इट लाइक दिस लेकिन इसमें हम जितने भी बॉन्ड्स हैं कैसे दिखा रहे हैं स्ट्रेट लाइन से इस तरह के प्रोजेक्शन फॉर्मूले को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इस तरह की जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं है पूरी सिलेबस में बस इंट्रोडक्शन है दिस इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जहां पर हम कार्बन हाइड्रोजन को कैसे दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन से लेकिन एक्चुअली में अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूं तो व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं कि कार्बन एटम टेट्राहेड्रल है नाउ द टेट्राहेड्रल मींस two of them are in the plate the model is showing two of the carbon atoms they are in the plate ऐसे होते हैं कौन चार बॉन्ड है ना तो दो आपकी में प्लेट है एक आपका होगा आगे
और एक होगा पीछे। ये सपोज आपका है आगे, ये दो तो है मेरे प्लेन, तो प्लेन वालों के लिए क्या यूज करते हैं? सिंगल लाइन। एक होता है मेरा आगे और एक होता है पीछे। पीछे दिख रहा है ब्लैक लाइन, हल्का सा शेड दिख रही है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि वो पीछे की साइड है। तो यानी टू बॉन्ड्स आर इन द प्लेन, एक है मेरा फ्रंट में और एक का है बैक में। So this is the tetrahedral shape जहाँ पर सारे जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं 109.5, क्योंकि इस सारे एंगल्स जो है वो आपके थोड़े से इससे बड़े हैं, तो perpendicular से बड़े हैं। So when I want to draw this type of structure, this is called as wedge dash structure. Now in the case of wedge dash, आपको बताया सपोज आपके चार बॉन्ड्स हैं, दो आपके हैं प्लेन, तो प्लेन वालों को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं स्ट्रेट लाइन? तो ये दो बॉन्ड्स हैं मेरे प्लेन, ठीक है, मैंने ज्यादा प्रिंट कर दिया। ये दो बॉन्ड्स हैं मेरे प्लेन। अब एक का मेरा बैक में और एक है फ्रंट। अब जो बैक वाला होता है, बैक वाले को मैं दिखाती हूं डॉटेड लाइन, ठीक है, और एक है मेरा फ्रंट। तो जो इन दोनों के बीच में मैंने बैक दिखा दिया, यहाँ पे मैंने दिखा दिया फ्रंट। ये हो गया मेरा फ्रंट। जब भी हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है फ्रंट, इसको मैं बोलती हूँ वेज, वेज का मतलब है फ्रंट। ये है मेरा डैश, डैश का क्या मतलब है? पीछे की साइड का बोलती हूँ, और ये दोनों मेरे कहाँ पर है? प्लेन। तो दिस टाइप ऑफ नोटेशन इज कॉल्ड एज वेज डैश नोटेशन। दो प्लेन में, एक बैक में और एक फ्रंट। इज इट ओके? अब इसमें और कुछ नहीं करना आपको। So this was the introduction to the chapter. अब हम थोड़ा सा मेन चैप्टर स्टार्ट करें, that is the classification of organic compounds, topic number 12.4. ये चैप्टर बहुत लंबा है, पहले सारी जितनी प्रैक्टिस करोगे इसमें नॉमेनक्लेचर है और ज्यादा प्रैक्टिस करिए। Next topic is classification of organic compounds. Now these organic compounds can be classified into two types in general. First of them is acyclic or open chain. Second is cyclic or closed chain. जैसे बेंजीन है वो आपका साइक्लिक कंपाउंड है, तो आपके दो तरह के होते हैं, ओपन चेन। ओपन चेन भी जैसे अगर आपने ये बना दिया किसी ओपन चेन, लेकिन साइक्लिक का मतलब है कि मैंने इस तरह से बना दी, उनको क्लोज चेन में कर दिया, तो दिस इज अ साइक्लिक। अब इसके बाद जो फर्दर है, जो ओपन चेन कंपाउंड्स है, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एग्जैक्टली आपको चेंज करके कराना, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ओपन चेन हमारे दो तरह के हैं, वन ऑफ देम इज सैचुरेटेड एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड। नाउ सैचुरेटेड में आपके आ जाते हैं एल्कीन, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड के अंदर आते हैं हमारे एल्कीन, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में आपके फर्दर दो आ जाते हैं। अनसैचुरेटेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू एल्कीन एंड एल्काइन। एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन मींस ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन मींस सिंगल बॉन्ड। So open chain can be classified into alkanes, alkenes और alkynes. Alkenes और alkynes आपके unsaturated है, saturated में है alkenes. Now we are coming to the closed chain compounds. अब ये जो आपके closed chain compounds हैं, they can be classified into two types. One of them is homocyclic. One of them is homocyclic. इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, मींस केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है। एंड सेकंड इज हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक मींस साइकिल के अंदर कार्बन के साथ कोई और एटम प्रेजेंट है। हेटेरोसाइक्लिक जैसे अगर मैंने आपको ये पूछा, अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दे दिया, ये क्या है? होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दिखाया, कार्बन कार्बन में ये कंपाउंड है मेरा होमोसाइक्लिक।
ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस कंपाउंड ऐसे एक कंपाउंड बना दिया, इसका क्या मतलब है कि ये कार्बन है, ये कार्बन, देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो ये कंपाउंड मेरा हो गया हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो मींस कार्बन के अलावा अगर कोई और एटम प्रेजेंट है, then that compound becomes heterocyclic. Heterocyclic compounds हमारे stable में K-12. ठीक है, so these are called as heterocyclic. Example पर आ गया, stable में 5 example which is ज्यादा है। Okay, next जो आपकी कार्बोसाइक्लिक है, इसमें होमोसाइक्लिक को दो तरह के हो जाते हैं। One of them is aromatic. Aromatic means जिसमें बेंजीन रिंग होती है, and other is एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, जैसे अगर मैंने ये कंपाउंड कर दिया ये एलिसाइक्लिक है, या मैंने ये बना दिया ये मेरा एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग नहीं है। अगर मैंने ये भी बना दिया ये भी मेरा क्या है, एलिसाइक्लिक है। और दीज आर एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मींस उनमें बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एरोमेटिक। एरोमेटिक में जो नेम हम स्टडी करते हैं बेंजीन वाला, लेकिन जो एरोमेटिक है it has been classified into two types. One of them is benzenoid. Benzenoid means जिसमें बेंजीन रिंग है, और सेकंड होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। अभी इसको नहीं समझा रही मैं क्योंकि आपका आगे आएगा पूरा बेंजीन रिंग के बारे में। एरोमेटिक में दो तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड में जिसमें बेंजीन रिंग है, एक होने के एरोमेटिक है बट दे डू नॉट कंटेन ऑफ बेंजीन रिंग। तो मेन जो हमारे सिलेबस में है हमें करना सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसके बाद हमें करने एरोमेटिक में कौन से करने बेंजीनॉइड। बाकी कुछ भी आपके ज्यादा सिलेबस में नहीं है। होमोसाइक्लिक थोड़े से हैं, ये वाले हैं। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक हमारे आगे Ma'am, can you tell acyclic? और नॉमेनक्लेचर भी नहीं करना। Ma'am, can you tell alicyclic and aromatic once again? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब आपने क्लासिफाई करना है कि ये कंपाउंड आपके कौन से टाइप के हैं। सिंपल सा क्वेश्चन Excuse me, ma'am. क्लासिफाई वेदर दे आर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक है जो भी है। ओके, नाउ फर्स्ट Ma'am, फर्स्ट कंपाउंड थोड़ा सा टेबल में रख कर लिए यहाँ करा देती हूँ, क्या टेबल से हेल्प ले सकते हो। ओके, नाउ इफ आई एम टेकिंग यू दिस कंपाउंड, व्हाट इज दिस कंपाउंड? ओपन चेन ही है ना, साइक्लिक तो नहीं है, तो दिस इज ओपन चेन और आर साइक्लिक। ओपन चेन को क्या बोलते हैं, आर साइक्लिक। ओके, नेक्स्ट दमन एंड देवांश, ये कंपाउंड क्या है आपका? होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक है? तो पहले से इतना बताओ, साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक में होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक है? दमन एंड देवांश, अनुमिता, आकांक्षा, वाली, होमोसाइक्लिक है। सारे कार्बन आइटम्स में बीच में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को नहीं लिखा, so these are homocyclic. Okay, I am writing the class. Time हो गया है। thank you, ma'am. Thanks, ma'am. So I am meeting the class. Record भी देखना, देखो फटाफट।